राह। Good evening to all of you, and welcome to another episode of Glyphs. We shall be starting in just a short while. A very warm welcome to all our viewers who have joined us on Facebook and on Zoom. Do put in your names and where you have joined in from. We would love to connect with all of you. Welcome again, and we shall start in just a short while. Hello and good evening to all our viewers from Pune, from Bhopal, Mandla, and of course from all across the globe. The great Leonardo da Vinci said, "Painting is poetry that is seen rather than felt, and poetry is painting that is felt rather than seen." Today we have two guests with us with both passions, painting and poetry. Stay tuned as we have a lovely interaction with our guests. To the audience, we will be recording this episode for quality purposes. Glyphs essentially means the representation of a character. And what better way there is to identify what a person truly is than to observe what he loves from within him. That's why the name Glyphs. It also stands for being a symbol that represents something beyond the face value. The three symbols or the three glyphs that you saw in the logo represent what the concept is all about.
They stand for Create, Connect, Express, or CCE. Like we all know, hashtag Passion Matters. Glyphs is a channel where you indulge in to identify the passion created within you, connect with each other, and openly and ingenuously express your thoughts and passions. The purpose of this channel is to create a community of like minded people who share a common drive for passion. Passion is the force that motivates you to achieve success and happiness to build a better life. It is something that allows you to be inherently yourself. Your passion can be singing, photography, painting, playing an instrument, or something even as different as collecting items, cycling, or sports. This might be something that you are not necessarily doing as your work. In fact, it is better to have if you have a passion that helps you unwind and enjoy your own company. The Glyphs community is meant to encourage us to keep pursuing our passions. It is a global community who sees, learns, and appreciates the things that we do. It is also an avenue where you can showcase your own passion and also be inspired to explore a new passion. You know you got it. We know you got it. Now let the world know you got it. And that's exactly what we are here to do: create, connect, express. And so, again, a very warm welcome to all of you on this lovely evening. I am your host, Kavita Avasti, and it is an absolute pleasure to welcome all of you to the 51st episode of this wonderful channel where we showcase your passion. To the audience, while we talk to our guests, please keep the chat box alive with your comments and appreciations. And to all our viewers on Facebook, we are listening to you too. So please feel free to put your comments on the Facebook page, which is live right now. So it is said that a poet is a person who is passionately in love with language. And here we have a passionate poet who has joined us all the way from Bhopal, Mayank Vaidya. A passion जिसकी शुरुआत तो खेल खेल में हुई, but then he got so much appreciation from people कि मयंक की जिंदगी ही बदल गई. Mayank is basically from MP, a place called Deuri, where he studied up to the 12th. Did his engineering from Bhilai, now is working with Persistent Systems and has been in Bhopal for the last 2 years. In college, a friend gave Mayank a book on Gulzar, and that was the start of his passion, as it completely changed his outlook towards poetry. The great Gulzar Saab has beautifully said, एक कहानी कहते कहते एक कहानी और मिली, एक कहानी कहते कहते एक कहानी और मिली, दिल की डगर से जाते जाते एक निशानी और मिली. कुछ ऐसी ही कहानियां, कुछ ऐसी ही निशानियां सुनते हैं मयंक की जुबानी. सो हर एक की जिंदगी की शुरुआत होती है बचपन से. कुछ ऐसे पल जो कभी नहीं भूलते, और इन्हीं पलों को बहुत सुंदरता से पेश कर रहे हैं मयंक थ्रू हिज पोएम बचपन के दिन. सो मयंक, ओवर टू यू फॉर दैट फर्स्ट पोएम. थैंक यू कविता जी. पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग. ग्लिप्स की सारी टीम जो इतनी मेहनत करके एक आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देती है, उन सब के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद. मैं अपनी पहली कविता आप सभी के सामने रख रहा हूँ. बचपन के दिन. मुझे लगता है कि हर बड़े होते हुए इंसान के जीवन में अगर कोई एक चीज कॉमनली जो सबके दिल के बहुत करीब होती है, वो उसका बचपन होता है. और कहीं ना कहीं हम बचपन की शरारतों को, उन यादों को
अपने अंदर समाये हुए जीते रहते हैं। कुछ ऐसी ही यादों को मैंने भी इस कविता में बांधने की कोशिश की है, सुनिएगा। अक्सर सोचा करता हूं ये बातें मां मैं तेरे बिन, अक्सर सोचा करता हूं ये बातें मां मैं तेरे बिन, कितने सुंदर कितने प्यारे थे मेरे बचपन के दिन। अक्सर सोचा करता हूं ये बातें मां मैं तेरे बिन, कितने सुंदर कितने प्यारे थे मेरे बचपन के दिन। बात बात पर मेरा रोना और मनाना तेरा, खेल खेल में घर की चौखट पर जमना वो डेरा। बात बात पर मेरा रोना और मनाना तेरा, खेल खेल में घर की चौखट पर जमना वो डेरा। हार जो हिस्से आई तो मेरा उदास हो जाना, होकर हताश आंचल में तेरे सर रखकर सो जाना। एहसास अभी भी थपकी का सीने पर होता है पलछन, अक्सर सोचा करता हूं ये बातें मां मैं तेरे बिन, कितने सुंदर कितने प्यारे थे मेरे बचपन के दिन। बचपन में एक चीज बड़ी कॉमन रहती है, मेरे साथ तो थी, पता नहीं आप लोगों के साथ है कि नहीं, बट पढ़ाई से बड़ा जी चुराते हैं हम। तो ये सुनिएगा कि बात पढ़ाई की आती तो सौ सौ आते थे बहाने, बात पढ़ाई की आती तो सौ सौ आते थे बहाने, पापा भी तेरे संग आते थे मुझको समझाने। समझाइश बेअसर हुई तो आती दबिश की बारी, समझाइश बेअसर हुई तो आती दबिश की बारी। आज खल रही है मुझको फिर से वो कमी तुम्हारी, फिर से उन्हीं दिनों में जीना काश के होता मुमकिन। अक्सर सोचा करता हूं ये बातें मां मैं तेरे बिन, कितने सुंदर कितने प्यारे थे मेरे बचपन के दिन। बात बात पर मेरा अपनी बहनों से लड़ जाना, बचपन में लड़ाई झगड़े बड़े कॉमन होते हैं, और आज के दौर के लड़ाई झगड़ों से वो काफी अलग होते हैं। बात बात पर मेरा अपनी बहनों से लड़ जाना, जिद जो पूरी ना हो तो मेरा खाना ना खाना। मेरे पसंद के व्यंजन की थाली लेकर तुम आती, मेरे पसंद के व्यंजन की थाली लेकर तुम आती, अपनी आंखों और बातों से ममता रस छलकाती। अब तो परोसी जाती हैं रोटियां भी थाली में गिन गिन, अक्सर सोचा करता हूं ये बातें मां मैं तेरे बिन, कितने सुंदर कितने प्यारे थे मेरे बचपन के दिन, कितने सुंदर कितने प्यारे थे मेरे बचपन के दिन। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, काश हम वो दिन फिर से जी पाते। Absolutely well said, Mayank. Of course, thank you so much. थैंक यू। So, to the audience, we all love seeing movies. The typical Hindi story: hero hai, heroine hai, they meet, they fall in love, and then, of course, the happy ending. So, such simple, very everyday situations that each one of us encounter in our daily life. Very simple, very basic ones, and yet presented very beautifully by Mayank. The next poem titled Aksar Yu Hi Hota Hai. Mayank, over to you. जी, जैसा कि इसका टाइटल है, अक्सर यूं भी होता है, मेरे ख्याल से हर इंसान की जिंदगी में ये लम्हात कहीं ना कहीं आते हैं जिनसे ये गुजरता है, और उन्हीं को जेब करने की कोशिश इस कविता में मैंने की है। सुनिए और बताइए कहाँ तक मैं कामयाब रहा। जहन की दीवारों पे यादें दस्तक देने लगती हैं, जब जहन की दीवारों पर यादें दस्तक देने लगती हैं, जब कश्ती फिर माजी के मझधारों में बहने लगती हैं, जब हौले हौले आस कोई एक अंगड़ाई सी लेती है, जब ख्वाहिश के पर लगते हैं परवाज दिखाई देती है, जब उम्मीदों के आंगन में कोई फूल सा खिलने लगता है। पहले प्यार की बात है, जब उम्मीदों के आंगन में कोई फूल सा खिलने लगता है, जब तन्हाई में दिल को एक सुकून सा मिलने लगता है, जब जिक्र यार का आए तो चेहरे का रंग बदलता है, जब जिक्र यार का आए तो चेहरे का रंग बदलता है, ये इश्क डली है गुड़ की जो हौले हौले से पिघलता है।
जब प्यार में डूबा डूबा सा हर लम्हा बीता करता है। जब आदमी प्यार में होता है तो अलग ही ख्यालों में होता है, एक अलग दुनिया में होता है। तो जब प्यार में डूबा डूबा सा हर लम्हा बीता करता है, और प्रेम सुधा का घट हौले हौले से रीता करता है। जब एक झलक को पागल मन घंटों तक बाट जोहता है। जब एक झलक को पागल मन घंटों तक बाट जोहता है, क्या प्यार उसे भी है मुझसे, ये हर पल यही टोहता है। जब नजरें करती हैं बातें और लब चुप साधा करते हैं। जब नजरें करती हैं बातें और लब चुप साधा करते हैं। जब पूरे पूरे कामों में हम आधा आधा करते हैं। जब हर शय पे तहरीर मोहब्बत की ही दिखाई देती है। तहरीर यानी राइटिंग। जब हर शय पर तहरीर मोहब्बत की ही दिखाई देती है, उससे मिलने की चाहत हर धड़कन में सुनाई देती है। जब देर रात तक आंखों से फिर नींद नदारत रहती है। जब देर रात तक आंखों से फिर नींद नदारत रहती है, और बातों में नज्मों गजलों सी एक हरारत रहती है। हर चीज सुहानी लगती है और सब कुछ अच्छा लगता है। इस मौसम में तो जीवन का हर सपना सच्चा लगता है। ये इश्क मोहब्बत प्यार कहें या वक्त की मीठी मार कहें, इस खुशबू में ही रचा बसा सपनों का ये संसार कहें। ये इश्क मोहब्बत प्यार कहें या वक्त की मीठी मार कहें, इस खुशबू में ही रचा बसा सपनों का ये संसार कहें। ये भावनाओं के बंधन का कच्चा सा सूती धागा है। ये भावनाओं के बंधन का कच्चा सा सूती धागा है। खुद ऊपर वाले ने ही तो रिश्तों को इससे तागा है। जीवन की इस पगडंडी पर सुख दुख तो आने जाने हैं। जीवन की इस पगडंडी पर सुख दुख तो आने जाने हैं। ये जादू जैसी यादें हैं, बस साथ यही रह जाने हैं। हर एक शख्स के दिल में ही ये बीज प्यार का पलता है। हर एक शख्स के दिल में ही ये बीज प्यार का सोता है। हमने ये देखा है जीवन में, अक्सर यूं ही होता है। हमने ये देखा है जीवन में, अक्सर यूं ही होता है। अक्सर यूं ही होता है। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। हंसी मौसम है, हंसी कविता चल रही है, बिल्कुल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। गुलजार साहब ने ये भी कहा है कि नस नस में है वो, नस नस में है वो, बस बस में नहीं है। क्या बात है। ब्यूटिफुली सेड। कहते हैं पहले प्यार का नशा कुछ और ही होता है, बिल्कुल। पर अगर ये प्यार वन साइडेड लव हो तो, well, this is Mayank's representation of this situation of one-sided love through his next poem. Mayank, back to you. जरूर। ये कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी कॉलेज के वक्त। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। क्या है, लड़कों के साथ एक बड़ी कॉमन सी बात रहती है कि जब भी वो निकलते हैं, गुजरते हैं अपने दोस्तों के साथ, और देखते हैं कि कोई बंदी, कोई लड़की अगर उनकी तरफ देख रही है, तो दोस्त ना चाहते हुए भी उनको ये यकीन दिला देते हैं कि नहीं बॉस, दिस इज फर्स्ट लव। और बेचारा वो बंदा ना चाहते हुए भी प्यार में पड़ जाता है। उसको लगता है नहीं, अब यही सच्चाई है। वो कहते हैं ना, चने के झाड़ पर चढ़ाना। तो वैसा ही कुछ आलम होता है, और उसमें देखिए वो क्या क्या सोचता है। सच्चाई कुछ और है। तो मैंने जो सच है वो भी दिखाया है, और जो झूठ है उसकी बात भी की है। इसीलिए कविता का टाइटल भी मैंने दिया है कि आधा सच और आधा झूठ। प्यार वो मुझसे करते हैं, ये आधा सच है आधा झूठ। मैं तो करता हूं, पर वो भी मुझसे प्यार करते हैं। ये एक खुशफहमी है जिसमें हम लड़के अक्सर जीते हैं। तो प्यार वो मुझसे करते हैं, ये आधा सच है आधा झूठ। वो भी मुझ पे मरते हैं, ये आधा सच है आधा झूठ।
प्यार वो मुझसे करते हैं, ये आधा सच है आधा झूठ। वो भी मुझ पे मरते हैं, ये आधा सच है आधा झूठ। सावन के आने से जब ये मौसम नम हो जाता है, ख्वाब सरोवर बन जाते हैं जिसमें गम खो जाता है। सावन के आने से जब ये मौसम नम हो जाता है, ख्वाब सरोवर बन जाते हैं जिसमें गम खो जाता है। हाथ झाड़ तस्वीरों से जब आंखें मलते उठते हैं, हाथ झाड़ तस्वीरों से जब आंखें मलते उठते हैं, तो सामने जो भी होता है वो आधा सच है आधा झूठ। प्यार वो मुझसे करते हैं, ये आधा सच है आधा झूठ। वो भी मुझ में मरते हैं, ये आधा सच है आधा झूठ। चाहत की महफिल का कुछ दस्तूर ही ऐसा होता है। चाहत की महफिल का कुछ दस्तूर ही ऐसा होता है। सजा याफ्ता इश्क है, कुछ कसूर ही ऐसा होता है। दिल में पनपी एक ख्वाहिश में जब रंग उड़ेले जाते हैं, दिल में पनपी एक ख्वाहिश में जब रंग उड़ेले जाते हैं, तो अक्स वही बन जाते हैं जो आधा सच है आधा झूठ। सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है, तो हमें वही दिखाई देता है जो हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल। दिल में पनपी एक ख्वाहिश में जब रंग उड़ेले जाते हैं, तो अक्स वही बन जाते हैं जो आधा सच है आधा झूठ। एक आशिक दिल की जो हसरत रहती है, वो इस बंद में जेब करने की कोशिश की है कि दिल के जज्बों की लड़ी पिरोकर नगमा भी गढ़ लेते हैं। दिल के जज्बों की लड़ी पिरोकर नगमा भी गढ़ लेते हैं। यार के सजदे में हम अक्सर कलमा भी पढ़ लेते हैं। काश ये दिल के आलम का कुछ इल्म उन्हें भी हो जाता। काश काश ये दिल के आलम का कुछ इल्म उन्हें भी हो जाता। आखिर वो भी तो अपने हैं जो आधा सच है आधा झूठ। प्यार वो मुझसे करते हैं, ये आधा सच है आधा झूठ। वो भी मुझ पे मरते हैं, ये आधा सच है आधा झूठ। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। आई थिंक बहुत लोगों के थोड़े से तार छिड़ गए होंगे ये सुनने के बाद. आई थिंक yes, they must have become really nostalgic. For his next poem, I am reminded of some beautiful lines again by the great Gulzar Saab. वो कहते हैं, यूं ही एक छोटी सी बात पर ताल्लुकात पुराने बिगड़ गए। यूं ही छोटी सी बात पर ताल्लुकात पुराने बिगड़ गए। मुद्दा ये था कि सही क्या है। मुद्दा ये था कि सही क्या है और वो सही कौन पर उलझ गए। So relations, trust, experiences of life all put together in the next poem coming up by Mayank. क्या बात है, बड़े खूब पंक्तियां कही आपने गुलजार साहब की। और मतलब जितनी भी उनकी तारीफ की जाए कम है। वो तो एक लिविंग लीजेंड है मैं कहूँ। मेरे Absolutely. लिए तो भगवान के बाद उनका ही दर्जा आता है। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बड़ी छोटी सी कविता है, बट मुझे लगता है कि जीवन के बहुत से कटु अनुभवों को ये दर्शाती है, और कहीं ना कहीं मेरे दिल के बेहद करीब है। आपके सामने रख रहा हूं, आप सभी के सामने सुनिए। सुबह निकलते सूरज को फिर शाम को ढलते देखा है। सुबह निकलते सूरज को फिर शाम को ढलते देखा है। हमने लोगों की बातों का अंदाज बदलते देखा है। सुबह निकलते सूरज को फिर शाम को ढलते देखा है। हमने लोगों की बातों का अंदाज बदलते देखा है। समय की परिभाषा को हमने अच्छे से है लिखा पढ़ा। समय की परिभाषा को हमने अच्छे से है लिखा पढ़ा। सेक के आंच पे अनुभव की हमने भी था एक ख्वाब गढ़ा। समय की परिभाषा को हमने अच्छे से है लिखा पढ़ा। सेक के आंच पे अनुभव की हमने भी था एक ख्वाब गढ़ा। उस ख्वाब को बंद हथेली से एक रोज फिसलते देखा है।
उस ख्वाब को बंद हथेली से एक रोज फिसलते देखा है। हमने लोगों की बातों का अंदाज बदलते देखा है। सुबह निकलते सूरज को फिर शाम को ढलते देखा है। हमने लोगों की बातों का अंदाज बदलते देखा है। अंतिम बंद है कि उम्मीदों के रंगों से भोली तस्वीरें बनती हैं। उम्मीदों के रंगों से भोली तस्वीरें बनती हैं। वक्त के हाथों ही तो सबकी तकदीरें बनती हैं। उम्मीदों के रंगों से भोली तस्वीरें बनती हैं। वक्त के हाथों से ही तो सबकी तकदीरें बनती हैं। उन्माद भरी आंखों को हमने बोझिल होते देखा है। उन्माद भरी आंखों को हमने बोझिल होते देखा है। सुबह निकलते सूरज को फिर शाम को ढलते देखा है। हमने लोगों की बातों का अंदाज बदलते देखा है। हमने लोगों की बातों का अंदाज बदलते देखा है। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा बढ़िया. Thank you, Mayank. Thank you so much for sharing all this with us. And like he said, alag andaz. Now we are going to talk about some andaz which are unknown about poetry with our audience. So, to all the audience who's present here, I will be asking you a few questions about some great poets and their poetry. I want you to tell me the answers to the questions that I'm giving you. This is something which we call as our Glyphs quiz. Please put in your answers in the chat box. To all the people who have joined in on Zoom, also all our viewers on Facebook. So, coming up, the first question of the day. The person that I'm talking about, he was awarded the title Dabar-ul Mulk by Emperor Bahadur Shah Zafar II in 1850, along with the title of Nazm-ud-Dawla. These titles were symbolic of his incorporation in the Delhi nobility. So, in the olden days, there was a concept that ghazals are only used as an expression of anguish in love. सिर्फ प्यार के बारे में गजल कही जाती थी. But it was this poet that I'm talking about who revamped the concept of ghazals, and he also used it to talk about the philosophies of life and other such subjects. Who is this great poet that I'm talking about? To the audience, who is the poet who was a part of the Delhi nobility? He was a part of the Delhi court. He was known as Nazm-ud-Dawla. I would want you to put your answers in the chat box. You can take a guess at this. Come on. All right, I'm going to give this one to you. I'm talking about Mirza Ghalib, the great Mirza Ghalib, who all of us, all the poets look up to as their idol in life. Okay, so moving on to the next one. During his struggling days, the first opportunity that he got was that of a hero's role in a Gujarati film. He, of course, politely refused because he wanted to stick to singing. However, he did sing a Gujarati bhajan in that film. Now, it was also his album in the year 1987 that was the first digitally recorded release in India. And he became so popular that in 1982, the tickets for his concert live at Royal Albert Hall was sold out in 3 hours. No, Abhay, it is not Sonu Nigam. I'm going to give you another hint. The person, his real name was Jagmohan Singh Dhiman. Who is this great ghazal singer that I'm talking about? He was known, yes, Himangi, that is right. It is, of course, the legendary Jagjit Singh. And the album that I spoke about was Beyond Time. Yes, Abhay, that is right, Jagjit. Yes. And Nutan, yes. The third question. The person I'm talking about, he's a poet, a filmmaker, a lyricist, and a writer who has enthralled the audience not only in India, but also has won international acclaim.
He started his career as a songwriter with music director S.D. Burman for the movie Bandhani. His first movie as a director was Mere Apne, and his real name is Sampuran Singh Kalra. Again, who am I talking about? Yes, Abhay, that was instant. Yes, we have a lot of Gulzar fans. Of course, I'm talking about the great Gulzar Saab. Of course, Gulzar is his pen name. Like I said, his real name is Sampuran Singh Kalra. And moving back to Mayank, like I said, Mirza Saab, Mirza Ghalib, Jagjit Singh, and Gulzar Saab. All of them are three idols that Mayank absolutely looks up to. So the next poem that Mayank is going to share with us is based on Gulzar Saab's style of poetry. So for that one, Mayank, back to you. Thank you, Kavita ji. Before I start this poem, actually आपने जगजीत सिंह जी के बारे में बात की, गुलजार साहब के बारे में कहा. So जैसा कि आपने बताया मेरे इंट्रोडक्शन के दौरान कि गुलजार साहब की एक बुक जब मैंने पढ़ी तब से कविता को देखने का नजरिया, पोएट्री को देखने का नजरिया मेरा बदल गया. और इस कविता के पहले मैं जरूर ये कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने एक अपना स्टाइल ऑफ राइटिंग डेवलप किया है, जिसमें एक, जिसको वो पोर्ट्रे कहते हैं, जिसमें वो अपने शब्दों से एक आकृति रेखांकित करते हैं आपके मनापटल पर. जैसे जैसे कविता बढ़ती है वैसे वैसे आपके जहन में वो अक्स, वो तस्वीर उभरती जाती है. वैसा ही कुछ करने की हिमाकत मैंने भी की है, कोशिश, और वही आपके सामने रख रहा हूं. ये किसके बारे में बात कर रहा हूं ये मैं अभी नहीं बताता हूं. इस पोयम के अंत में आपको शायद, अगर मेरी कोशिश सफल है तो पता चल जाएगा. रूहानी शाम का दिलकश कोई मंजर ठहर जाता, रूहानी शाम का दिलकश कोई मंजर ठहर जाता, वो बन के अब्र जब नज़्मो गजल की बारिशें लाता. रूहानी शाम का दिलकश कोई मंजर ठहर जाता, वो बन के अब्र जब नज़्मो गजल की बारिशें लाता. शबाबो हुस्न जिसकी तान में लेता था अंगड़ाई, शबाबो हुस्न जिसकी तान में लेता था अंगड़ाई, कि जिसकी मखमली आवाज में घुलती थी तन्हाई. गमों के भी जखीरे जिसके पहलू में पनाह पाते, गमों के भी जखीरे जिसके पहलू में पनाह पाते, वो अल्फाजों में ना ढलकर निगाहों से छलक आते, वो अल्फाजों में ना ढलकर निगाहों से छलक आते. वो देके वास्ता गम का कभी मरहम लगाता था, वो देके वास्ता गम का कभी मरहम लगाता था. कभी सूखे से होठों पर नई मुस्कान लाता था, वो जो गजलों के मोती ओक में भरकर लुटाता था, वो जो गजलों के मोती ओक में भरकर लुटाता था. रवायत को मिटा वो अपनी राहें खुद बनाता था, वो मनमस्त कोहसारों से आता आबशारों सा. कोहसार यानी पहाड़, और आबशार यानी पहाड़ से जो झरने गिरते हैं उनकी बात की है कि वो मदमस्त कोहसारों से आता आबशारों सा. वो दिल को भी लुभाता कोई कमसिन के इशारों सा, कि जिसकी हर अदा में जिंदगी का फलसफा भी था, कि जिसकी हर अदा में जिंदगी का फलसफा भी था. वो सब में भी मिला था और सबसे वो जुदा भी था. वो बहता एक दरिया था, वो मौजों की रवानी था, जो हर दिल में रहे जिंदा वो एक ऐसी कहानी था. वो बहता एक दरिया था, वो मौजों की रवानी था, जो हर दिल में रहे जिंदा वो एक ऐसी कहानी था. दिलों की धड़कनों में जो बसा एक मीत ही था वो, दिलों की धड़कनों में जो बसा
एक मीत ही था वो, गजल के फन को जिसने जीता वो, जगजीत ही था वो, जगजीत ही था वो। थैंक यू। बहुत सुंदर मयंक, बहुत ज्यादा सुंदर है ये. So for the last one, we say ghazals and nazms. They have a very close connection with poetry. Mayank has penned down a few poems taking inspiration from the ghazal and the nazm style of presentation. Mayank, we just have time for one. We're just about ready to go. Yeah, back to you. जरूर। सो अभी तक जो जो अभी हमने कविता सुनी वो बेसिकली एक नज्म की कैटेगरी में फॉल होती है। मैं जस्ट ब्रीफ में बता देता हूँ कि नज्म और गजल क्या होती है, इसके बीच क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली गजल की अपनी एक व्याकरण होती है जिसमें दो दो पंक्तियों का एक शेर होता है, दो पंक्ति से एक शेर होता है, और हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है, एक कहानी कहता है। जैसे कि कोई मिर्जा गालिब साहब का एक खूबसूरत गजल है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। ये दो पंक्तियों का एक शेर है जो अपने आप में मुकम्मल है। गजल में ऐसी कोई बंदिश नहीं रहती कि हर शेर एक ही कहानी को कहे, जबकि नज्म में एक ही कहानी रहती है जिसे कहा जाता है। जगजीत सिंह साहब की एक बहुत ही फेमस नज्म है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, मेरे ख्याल से आप सभी ने सुनी ही होगी। तो ऐसी ही एक नज्म जो मैंने लिखी थी जगजीत जी से पे, वो अभी आपने सुनी। अब मैं एक गजल आपको सुनाना चाहूंगा। अ, ये भी मोहब्बत के ऊपर ही, प्यार के ऊपर ही, क्योंकि गजल का अर्थ ही होता है महबूब से बात करने का तरीका। ये एक फारसी शब्द है और पहले जमाने में सिर्फ मोहब्बत से लबरेज ही गजलें लिखी जाती थी। तो एक कोशिश मेरी भी है, सुनिएगा। तुम हमारे प्यार की दिलखेज निशानी लिखना, तुम हमारे प्यार की दिलखेज निशानी लिखना, इश्क से लबरेज हो जो एक कहानी लिखना। तुम हमारे प्यार की दिलखेज निशानी लिखना, इश्क से लबरेज हो जो एक कहानी लिखना। तुम नहीं लिखना जमाने से मिली वो तलखियां, तुम नहीं लिखना जमाने से मिली वो तलखियां, दो दिलों की अनकही उस बात के मानी लिखना। तुम नहीं लिखना जमाने से मिली वो तलखियां, दो दिलों की अनकही उस बात के मानी लिखना। तुम हमारे प्यार की दिलखेज निशानी लिखना। राह उल्फत में मिले आजाब का ना जिक्र हो, राह उल्फत में मिले आजाब का ना जिक्र हो, हाँ मगर उस रात की वो अश्क फिसानी लिखना। हाँ मगर उस रात की वो इश्क फिसानी लिखना, ना उसे तुम महजबी लिखना ना हुस्न महताब, ना उसे तुम महजबी लिखना ना हुस्न महताब। शाम की राधा या कोई मीरा दीवानी लिखना, शाम की राधा कोई या मीरा दीवानी लिखना। तुम हमारे प्यार की दिलखेज निशानी लिखना। और हासिल गजल शेर है कि रुखसती के वक्त वो जब जीस्त से लाचार थी, रुखसती के वक्त वो जब जीस्त से लाचार थी, पुरसुकून चेहरे पे था ना आंख में पानी लिखना। तुम हमारे प्यार की दिलखेज निशानी लिखना, इश्क से लबरेज हो जो एक कहानी लिखना। तुम हमारे प्यार की दिलखेज निशानी लिखना। थैंक यू। Bahut Sundar, what a beautiful way to end this. But we're not finished yet. Audience, do not go anywhere. Mayank is going to be back with an awesome finale that we all have planned for you after we see the performance of our second guest. So, थैंक the यू। Glyphs CCE show has celebrated the milestone of completing 50 episodes, and we are absolutely overwhelmed with the response from all the well wishers from across India and from more than 37 countries. This platform has brought together people from different places, different cultures, all bound together by passion. We are now building a larger team with a better infrastructure
to keep showcasing, pursuing, and inspiring more passions all across the world. So, friends, if you have liked the episodes, the experience, and the concept, we are now open to have your financial support to help us to build a stronger platform than ever before. Your financial support, however big or small, is extremely valuable to us. You will be able to see a Google Pay number as well as a QR code on the screen right now. So, for any kind of contribution that you would like to make to take this concept forward, you're most welcome to do this. That's the Google Pay number and that's the QR code on the screen. So, before we move on to our next performance, it's over to Hemangi, who is going to share how each one of you can also become a part of our ever-growing channel, Glyphs. Over to you, Hemangi. Thank you so much, Kavita. Hello, everyone. My name is Hemangi, and I'm a part of the Glyphs community with a passion for wildlife conservation and photography. We have just heard Mayank talk about his passion. Oh, that's poetry, and it was so astonishing to hear all those shairis. In the same manner, all of us have different passions that we love to do. May it be singing, dancing, traveling, or even coin collection. The list is just endless. Glyphs CCE is a channel that provides you a platform to take your passion across the globe. We currently have a viewership in over 37 countries. On saying that, let us move ahead and let us take a quick poll. You will see 3 options in front of you now. Request you to click the option for the way you would like to be a part of the Glyphs CCE community. Well, there's the poll. I'll read the poll out to you. Your passion got you here. What will be your next step? I would like to talk about my passion on an episode of Glyphs CCE. I would like to refer a friend or a relative to talk about their passion on an episode of Glyphs CCE. I would like to become or refer someone to become a production partner. For all our viewers on Facebook, please comment option 1, 2, or 3, and we will get back to you. Well, 68% can refer someone to our channel. Wow, I'm already looking forward to it. Now you can see the phone number and the email ID on the screen. So join us on the Glyphs CCE channel, the place where every passion finds a home. Before I hand it over to our lovely host, Kavita, let me take this opportunity to thank her as well. Kavita Avasthi, a fashion designer who owns and runs a boutique, Poshak, for past 26 years. Thank you so much, Kavita, and over to you. Thank you, Hemangi, and thank you to our audience for participating in that poll. So it's time to move on to our next guest. There's a lovely saying, painting is easy when you don't know how, but very difficult when you do. And here is our guest who has embraced this passion of painting without ever knowing how. Shyam Pahapalkar, who has followed this passion since childhood without ever receiving any formal training in it. He came from a place called Mandala in MP, where even the basic drawing material was not available. Most of his drawings were only using haldi or turmeric and koila, which is coal. In fact, even the papers that were required for drawing were unavailable, and he used to use the backside of his dad's office papers or his office stationery for drawing. In spite of all these hardships, the passion did not die down. Shyam did make himself excel at different kinds of paintings. Charcoal painting, frescoes, mandala, and Indian arts like tribal art, Gond art, Madhubani are styles that he is fond of. He has been taught frescoes by Devki Nandan Sharma.
So during his stay in Mumbai and Ahmedabad, Shyam came across a lot of situations which inspired him to create a whole series of paintings which he says, based on the different facets of a woman and also based on women empowerment. What Shyam is going to share with us next are a few paintings from that series. So Shyam, over to you for that series. रियली कि मंडला एक बहुत ही छोटी सी जगह थी जहाँ मेरा जन्म हुआ है और बहुत नेचुरल सी और खूबसूरत सी जगह और जहाँ पे लेकिन इसके अलावा कोई सुविधाएं नहीं थे कि इवन जैसा कि बताया कि यहाँ पे मटेरियल भी पॉसिबल नहीं था इवन ये संभव नहीं था एजुकेशन भी संभव नहीं था फिर मैंने जरूर खैरागढ़ से मास्टर्स किया नॉन तो ये मेरी एक जर्नी थोड़ा सा जोर से बात करेंगे आप आवाज कम आ रही है आपकी कि खैरागढ़ से मास्टर्स करने के बाद मैंने पेंटिंग से मास्टर्स किया और फिर मैं बॉम्बे की तरह बॉम्बे आया जैसे कि सभी कलाकारों का एक सपना होता है कि बॉम्बे में हम काम किया जाए बॉम्बे एक ड्रीम लैंड है आर्टिस्ट एक जगह है तो जब मैं बॉम्बे आया तो मेरे लिए बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस था कि एक छोटी सी जगह मंडला बहुत नेचुरल जगह है लेकिन सेम टाइम बॉम्बे एक मेट्रो सिटी और जहाँ का लाइफ स्टाइल एकदम अलग था बहुत फास्ट था रिलेशन को लेके मैं एक डिफरेंट तरीके से बात कर सकता हूँ कि बॉम्बे मेरे लिए टोटली एक अलग ही जगह पे मेरे अंदर आकर बैठ गया जो उसका अनुभव था वो मेरे अंदर एक अलग तरीके से आया और जिसके कारण मैं जो पेंट किया मैंने उस एक उस अनुभव के लेके जो मैंने पेंट किया वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ अब बात करते हैं कि हेलो यस वी कैन हियर यू श्याम गो अहेड यस कि बॉम्बे की जो फास्ट लाइफ है उसमें हम मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों को हम देखते नहीं हमारा नजरिया ऐसा होता है कि हम उन चीजों को अनदेखा करते हुए निकल जाते हैं इतनी फास्ट लाइफ के बीच से मेरा लेकर कहीं ना कहीं उस विषय पे ध्यान जा रहा था और वो था स्त्री जिस पे हम कम ही बातचीत करना चाहते हैं बहुत गुपचुप से बातचीत होती है स्त्री पे लेकिन एक ऐसा विषय जो कहीं ना कहीं से हमारी भावनाओं को एक अलग दिशा में ले जाता है आज हम रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं हम रोज न्यूज में देखते हैं कि क्या नहीं हो रहा है क्या हो रहा है तो एक वो विषय जिसको हम बचपन से अगर आप देखें कि हम जब छोटे थे और बच्चे ड्राइंग करते हैं जब खाली टाइम होता है और पढ़ाई करते करते अपनी कॉपी पे कुछ तो गोदते हैं कुछ तो बनाते हैं और सेम हम देखते हैं कि एक फीमेल को मेल बनाना उसकी दाढ़ी बनाना और या फिर मेल को फीमेल की तरह अलंकृत करना उसके ऊपर इस तरीके से कुछ बनाना तो ये एक बड़ा फनी सा लगता है बड़ा लगता है लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर बचपन से जो एक संस्कार होते हैं वो ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं एक द्वेष बोलना चाहिए या कोई एक आकर्षण बोलना चाहिए वो यहाँ पे दिखाई देता है और इसी सीरीज में मैं आपको बोलता कि मैंने बॉम्बे से जब मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुआ और बॉम्बे और अहमदाबाद के जो एक्सपीरियंस है उस सीरीज में मैंने फिर जो पेंटिंग शुरू की थी उसका जो सीरीज का नाम था जूली मिस वो सीरीज का नाम दिया मैंने कि हेलो श्याम और थोड़ा सा आपको जोर से बात करनी पड़ेगी ऑडियंस को सुनाई नहीं दे रहा है आपकी आवाज हाँ जी दैट इज द फर्स्ट पेंटिंग बाय श्याम कि इसमें आप दिखाई दे रहा है कि एक स्कूल के बच्चे
जो कि अपने साल के लास्ट में एक फोटोग्राफ लेते हैं अपने टीचर के साथ, क्लास टीचर के साथ। और यहाँ पे टीचर जो बैठी हुई है, बहुत कम एज की क्लास टीचर है और शॉर्ट में बैठी हुई है, और चेहरे के एक्सप्रेशन जो देख रहे हैं हम कि बच्चों के चेहरे के एक्सप्रेशन जो दिखाई दे रहे हैं वो थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। एक स्माइल है बहुत pretty। तो ये एक डिफरेंट स्टोरी वहाँ पे अपने आप में एक स्टोरी क्रिएट कर रही है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। वो कहने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और इसी सीरीज पे मैंने लगातार काम किया है, जूली मिस सीरीज पे। हेलो। क्योंकि बॉम्बे में मैं आपको बोलता हूँ कि जो मैं देख रहा था वो ये था, मेरे सामने बॉम्बे में जो कैरेक्टर थे वो, हेलो, बॉम्बे में फीमेल को मैं देख रहा था। एक तरफ से वो कंधे से कंधे मिलाकर चल रही थी, भाग रही थी। सेम टाइम एक समय जो स्टेशन के बाहर फीमेल्स खड़ी होती थी, या जुहू चौपाटी पे फीमेल्स खड़ी होती थी, या किसी होटल्स पे खड़ी होती थी, वो एक अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को जीने के लिए वो एक दूसरा रास्ता देख रही थी। वो एक अपने आप को शोषण के लिए भी प्रेजेंट करने को तैयार थी। सेम टाइम एक ऐसी स्त्री, मुझे एक स्त्री का एक रूप और दिखाई दे रहा था। वो ये था कि जो होर्डिंग्स पे दिखाई दे रही थी, एडवर्टाइजमेंट में दिखाई दे रही थी कि वो एक मेल पार्ट में कहना चाहिए कि शेविंग क्रीम बोलो या उसका भी एडवर्टाइजमेंट कर रही थी। तो इस तरीके से जो डिफरेंट हेलो, एक पार्ट दिखाई दे रहे थे। ये आप जो पेंटिंग दिखाई दे रही है, इसका टाइटल है जीनत आपा। इस पेंटिंग में आप देखेंगे कि एक आईज दिखाई दे रही जो किसी बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत ही अपेक्षा से एक पेन दिखाई दे रहा है वहां पे। और उनके, ये मैं आपको बोल दूं कि ये पुरुष प्रधान पार्ट को दिखा रही है पेंटिंग, क्योंकि इसमें मेल जो फेसेस हैं, इसके ऊपर फीमेल के ऊपर मेल फेसेस स्टिच किए हुए हैं, छोटे छोटे। अगर आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा हो कि वहाँ पे मेल फेसेस अगर क्लोज किया जाए पेंटिंग पे, तो छोटे छोटे जो उसके ऊपर एक बुरके जैसा दिखाई दे रहा है, ये वहाँ पे मेल फेसेस स्टिच किए हुए हैं, सिलाई किए हुए हैं। तो ऐसे हजारों फेसेस वहाँ पे स्टिच किए हुए हैं, और इसका टाइटल है जीनत आपा। तो ये आप कहने की जरूरत नहीं है कि ये किस एक्सप्रेशन की तरफ जाती है पेंटिंग, ये क्या दिखाना चाह रही है। नेक्स्ट प्लीज। हेलो। Yes, we'll have the next slide. Yeah. ये पेंटिंग, इसमें आप देखेंगे कि ये ट्रक के ऊपर बहुत सारी फीमेल्स बैठे हुए हैं, और इधर पे मैंने बड़े एक डिफरेंट वे पे रिलेट किया है कि एक ट्रक जो किसी गांव से आने वाला ट्रक है, और उसमें जो गर्ल्स बैठी हैं वो मॉडर्न ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं आपको, काफी मॉडर्न ड्रेसिंग है उनका, और बहुत अलग से एक्सप्रेशन है इसमें। तो मैंने देखा कि जो बॉम्बे में लाया जाता है फीमेल्स को या गर्ल्स को यहाँ पे डिफरेंट वर्क के लिए या शोषण के लिए, ये किसी गांव साइड से या किसी ऐसी जगह से लाया जाता है जहाँ पे मजबूर होती है वो। तो इस पेंटिंग में वो देख रहे होंगे कि आप पीछे लैंडस्केप दिखाई दे रहा है, वो ट्रक दिखाई दे रहा है, और उस ट्रक में मैं इस तरीके कंसेप्ट को बहुत अलग तरीके से देखता हूँ कि एक ट्रक के ऊपर जय माता दी लिखा हुआ है। आप वहाँ देखें कि ऊपर एक लाइन है जय माता दी, और नीचे लिखा हुआ है गुड्स कैरियर। तो गुड्स कैरियर मीन्स वो ट्रक जो सामान रखने के लिए, गुड्स लाने के लिए यूज होता है। वहां पे वो फीमेल्स बैठी हुई हैं,
वहां पे वो गर्ल्स बैठे हुए हैं, तो ये हेलो, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट कह रहा है। ये मेरी एक इंस्टॉलेशन है, एक्चुअली ह्यूज इंस्टॉलेशन है, काफी बड़ा। इसमें दो माध्यम यूज हुए हैं। पहला है आयरन, एक और नीचे है टी शर्ट्स जो दिखाई दे रही है, वो कपड़ा है जो बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। आयरन जो है उससे जो इस्त्री बनाई हुई है, इस ओवरऑल वर्क का टाइटल ही इस्त्री है। जो आयरन बना हुआ है वो लोहे से है। अब वो लोहे से एक स्ट्रॉन्ग माध्यम है, लेकिन वहां पे वो इस्त्री एक मस्कुलर पावरफुल सोसाइटी का जो सोसाइटी का सिस्टम है हमारा, जो थोपा गया है बहुत भारी भरकम सिस्टम को एक टी शर्ट के ऊपर रखा हुआ। वहां पे बहुत सारी टी शर्ट है, और उसमें मैं बता दूं आपको कि वो टी शर्ट के ऊपर फीमेल पोर्ट्रेट किए हुई हैं, वहां पे फेसेस पोर्ट्रेट किए हुए हैं। तो इसमें ये दिखाया कि उसके ऊपर जो प्रेशर एक फीमेल के ऊपर किस तरीके से सॉफ्ट फीलिंग है उसमें, और उसके ऊपर वो मस्कुलर पावरफुल एक स्त्री रखी हुई है। और सेम टाइम ये स्त्री जो है ये भी दिखा रही कि किस तरीके से हम इसको पूंजीवादी दृष्टिकोण बोल सकते हैं, कि एक कमर्शियल उसका एस्पेक्ट बोल सकते हैं, कि कैसा बाजारीकरण है कि हम उसको प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हम टी शर्ट्स बहुत अच्छे से सेल होनी चाहिए, इसके लिए उसके ऊपर हम फीमेल्स को पोर्ट्रे कर रहे हैं, बना रहे हैं, ताकि वो अच्छे से सेल हो सके। Right. Thank you, Sham, for sharing all your thought processes in all these things. Of course, where we can see women empowerment and different facets of the women coming out from there. Thank you so much. And now, audience, it's time for a quiz. Unknown facts, some lesser known facts about the world of art. So, like I said, Sham also does do charcoal painting. So charcoal, you should know, was often a key component of the cave paintings. One of the oldest paintings in charcoal in the world is that of a zebra, which is said to be dated almost 28,000 years ago. 28,000 years ago. So this painting of the zebra is found in a cave in one of the countries in the world. My question to the audience is, can you tell me which country is the cave in which this painting can still be found? Which is this country in which the cave is where you can find the painting of the zebra in charcoal made almost 28,000 years ago? All right, I am going to give this one to you. No, it's not in India. Priyesh, wow, yes, that is absolutely the right answer. It's the Apollo Caves in Namibia. Absolutely bang on, Priyesh. Thank you for that answer. Moving on to the next question. There has been a very famous art form that has actually stopped deforestation. Can you believe that? An art form stopping deforestation. What I want the audience to tell me is, which is this art form which actually managed to stop deforestation? So I'm going to give you a hint there. It is an art style from Bihar, and it is famous for its beautiful illustration of the Hindu deities. Hindu Devi Devtaon pe it is a very famous art form from Bihar. Which is this art form that I'm talking about? Yes, Abhay, that is the right answer. It is Madhubani. You're actually going to see a picture on the screen. So Madhubani, the art style is from Bihar, like I said. And in 2012, a bunch of artists, they actually created vibrant masterpieces on the barks and the trunks of trees to restrain people from cutting them off. And it definitely worked. Not a single painted tree was chopped. In fact, the highway number 52 of the Madhubani district is a well-known tourist destination even today. So moving back to Sham, we say in Corona during lockdown,
each one of us had a different way of dealing with that lockdown, with that stage of our life. Each one of us found a release, a different way of expression while all of us were at home. So the next set of paintings that we're going to see was Shyam's way of expression during this stage of lockdown. So back to Shyam, who's going to explain the details and of course his thought process behind these creations. Yes, Shyam, back to you. Yep. या रियली कविता की मुझे बचपन से आदत हो चुकी थी कि मैं क्योंकि मेरे बचपन में जो ड्राइंग होते थे वो या तो कोयले से होते थे या हल्दी से होते थे या फिर पेन या जो ऑफिस के पेन होते थे ब्लू और रेड उससे ही होते थे। तो अभी एक जब कोरोना पीरियड शुरू हुआ और मैं बॉम्बे से मंडला हुआ था दिसंबर में एक्चुअल, और उसके बाद अचानक से कोरोना शुरू हुआ और हम बॉम्बे की तरफ नहीं जा सकते थे, और ऐसा कुछ था कि हम अपने साथ कलर्स वगैरह यहाँ लेकर नहीं आए थे, ना ब्रश थे ना कुछ भी अवेलेबल। तो मुझे लगता है कि कोई भी परिस्थिति हो और कुछ भी हो, हमारे पास जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो उस पे से ही हमको काम करना चाहिए और यही पैशन है। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो सीरीज है ये एक डिफरेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे आकृतियों, परिचित और अपरिचित आकृतियों की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब भी मैं काम करता हूँ, कोई लैंडस्केप करता हूँ, कोई ड्राइंग करता हूँ और जब लाइव बनाता हूँ, तो जो फॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं, जो फॉर्म्स मैं देखता हूँ, धीरे धीरे वो फॉर्म्स ड्रा करते करते हम उसके पीछे जो अलग आकृतियां दिखाई देने लगती हैं, वो जो डिफरेंट आकार मुझे दिखाई देने लगते हैं, उन आकारों के बीच में मुझे एक डिफरेंट संवाद नजर आता है। वो आकार जो नोन नहीं होते वो आपस में बातचीत करते हैं, और उन आकारों को मैं अपने ड्राइंग पे बनाने लगता हूँ। जो अभी आप देख रहे हैं चारकोल से बने ड्राइंग्स में कि कुछ नोन आपको परिचित आकार दिखाई दे रहे होंगे और कुछ ऐसे आकार दिखाई दे रहे हैं जो आप जिनसे अपरिचित हों, जो आप जानते नहीं। तो ये एक संवाद है कि अगर हमको आदत है तो हम इनके साथ हम इनके साथ इन्वॉल्व हैं, हम सभी इन्वॉल्व हैं। और जब अगर हम इन आकारों को समझते हैं, इन के पास जाते हैं, तो हम एक एनर्जी का एहसास करते हैं, एक पावर को फील कर सकते हैं। ये इन आकारों के साथ हमें एक रस प्राप्ति का एहसास होता है। हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से एक आध्यात्मिक लेवल पे जाते हैं, जहाँ पे एक निराकार की बात होती है, जो एक परम सुख की प्राप्त होती है, जहाँ परम रस की प्राप्त होती है। इस लेवल पे आके ये वर्क खत्म होते हैं, जहाँ पे हम आके कह सकते हैं कि कला ही ईश्वर प्राप्ति है। Yes, thank you. Thank you so much, Shyam, for sharing all those things with us. And to the audience, as we promised, here comes our fantastic finale, which we say is a unique amalgamation of two passions. So, well, what we're going to see here is that Shyam is going to create a beautiful painting, and perfectly synchronizing with him is Mayank, who has created a poem on exactly the theme of the painting. So presenting our signature fusion, the glyphs Jugalbandi. Over to you, Mayank and Shyam. Here it comes. चंद हसीन लम्हों का साथ लिए, स्वर्णिम सपनों की बारात लिए, कुछ हाथों में हाथ लिए, अपनों की प्यारी सौगात लिए, मैं चला जा रहा हूं अनंत से अनंत की ओर। पग पर चिर निद्रा में लीन हुए, कभी गिरता तो कभी उठ जाता। पग पग चिर निद्रा में लीन हुए, कभी गिरता तो कभी उठ जाता। कभी स्वयं को राह दिखाता, कभी स्वयं को भटकाता। किसी अंधकारमय जीवन में
मैं एक चिराग को जलाता, कभी स्वयं से रुष्ट हुआ और कभी स्वयं पर इठलाता। कुछ खट्टी मीठी याद लिए, कुछ खट्टी मीठी याद लिए, संग अपने हुनर की दाद लिए। पुलकित जीवन का राग लिए, भ्रमरों संग पुष्प पराग लिए। मैं चला जा रहा हूं अनंत से अनंत की ओर। राहगीर बन राह में चलता, पंछी बन उड़ जाता मैं। राहगीर बन राह में चलता, पंछी बन उड़ जाता मैं। नई नवेली वधु प्रकृति से नित नित व्याह रचाता मैं। जब अंतर मन कुंठित हो तो अपने ही गीत सुनाता मैं। जब अंतर मन कुंठित हो तो अपने ही गीत सुनाता मैं। पात हवा पानी सरगम दे, उस पर साज सजाता मैं। अपने सरगम और साज लिए, एक मधुरिम सी आवाज लिए। अपने सरगम और साज लिए, एक मधुरिम सी आवाज लिए। गिरते निर्झर की तान लिए, अधरों पर कुछ मुस्कान लिए। मैं चला जा रहा हूं अनंत से अनंत की ओर। मैं चला जा रहा हूं अनंत से अनंत की ओर। वाह, बहुत बढ़िया. What a beautiful end to this amazing episode. On behalf of our audience and Team Glyphs, Sham and Mayank, an absolute heartfelt thanks to you for joining us on our channel today. Thank you, Mayank. Thank you, Sham. थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. And also, we would like to thank Neeraj Ketkar and Mahesh Anzarlekar for introducing today's guests, Mayank and Sham, to this channel Glyphs. To the audience, like I said, we just crossed the milestone of completing 50 episodes, and we are completely overwhelmed with the response that we have got from all the people across India and across the 37 countries in the world. We are now building a larger team with a better infrastructure to keep showcasing, pursuing, and inspiring more passions all across the world. So, if you have liked the episodes and the experience, and of course the concept, we are now open to have your financial support to help us to build a stronger platform than ever before. Your financial support, however big or small, is extremely valuable to us. So, to the audience, you will be able to see a Google Pay number as well as a QR code for any contribution that you would like to take to take this concept forward. That's the Google Pay number and, of course, the QR code. We will look forward to your contribution. Thank you so much. And we also thank our ever efficient backend team for their efforts in preparing each episode flawlessly. And of course, the founders, Salil, Tanushri, and Gayatri, for innovating this idea and creating this awesome channel. Last but not the least, our wonderful audience from India and across the globe for watching, supporting, and encouraging us during each episode of our channel Glyphs CCE. In case anyone from the audience is interested in interacting with our guests, please put your name in the chat box and we can get you backstage to talk to them. I'm your host Kavita Avasti signing off for today. My team and I shall be waiting to see you on our next episode, where we introduce you to 2 new amazing passions. So tune in on Sunday at 5 o'clock and be there to experience a new world of passion. Until then, stay safe, keep exploring your passions, and do take very good care of yourselves. Good night and have a lovely weekend ahead.